welcome to another video, vlog, whatever you're going to say. Yeah, Tata Key Nexon EV, and today we are going to do the range test. So, firstly, I have got it here, जहाँ पे I'm going to charge it to the 100%. Basically, ये not again, यार मुझे अंदर जाना है. I'll have to just open the lid. कभी-कभी actually है ना ये थोड़ा problematic हो जाता है. But never mind. That's the thing. So the agenda is we're gonna head out on a 150 kilometers one-way trip. Round trip होने वाले almost 300 kilometers के around. And the motto for this range test ना कि मैं ये नहीं करने वाला हूँ कि literally zero से मतलब 100% obviously charge करके मैं zero तक लाने का try नहीं करूँगा. But I'm gonna stick to the most realistic manner कि जैसे you and me gonna plan the trip. Let's say इसमें अभी मेरे पास है 461 kilometers की जो range दिखाती है. Obviously इसमें जो बैटरी मिलती है 40.5 किलोवाट आवर की. तो claim range is 461 kilometers, but how close it can come to the realistic figure, we're gonna test that thing today in this video. So first I'll get the next one charged 100% तक, and then we'll get going with the video. Okay, so the best part about the charging station is, well, let me just make the payment. यहाँ पे मैंने already 83% charge है मेरी बैटरी, and yes, तो पेमेंट हो गया. So basically the best part about this charging station ना धानु में जो है, you don't need any app or anything. You just have to come here, plug the charger, connect it, pay the you need to pay the amount via the QR code given over there, and you are good to go. They have actually made the process whole hassle free कहा जाए तो, because यहाँ पे कुछ ऐप नहीं डाउनलोड करना है, वो कुछ लॉगिन नहीं करना है, ना ही कुछ डिटेल्स डालने हैं, बस जाओ, just make the payment as you do at most of the shop via UPI. So as you can see 100% चार्ज कर दी उन्होंने बैटरी, एंड यहाँ पे रेंज दिखा रही है 391 किलोमीटर्स और ओडोमीटर रीडिंग है 19,000 किलोमीटर ओवर ईयर. सो बेसिकली अभी क्या करने वाले हैं, वी गोना टेक दी ट्रिप बी एंड रीसेट करते हैं यहाँ पे. आई जस्ट कीप होल्ड बटन given on the steering wheel, and as you can see I have reset the trip B. Odometer is like a अच्छा good number यहाँ पे 19,000 is what the odometer reading is showing right now. The vehicle is in city mode, and as soon as I change the mode from here, as you can see eco mode पे यहाँ पे 415 किलोमीटर हो गई. So basically range यहाँ पे बढ़ रही है around 15. As soon as I put it in sports mode 371 हो गई है, but I'll better keep it to this city mode only, where I think it fulfills most of the requirements यहाँ से. तो and talking about the region, I'll be this adjusting is between just L1 means what I mean to say is level 1 और level 2 तक ही मैं रखूँगा, ज़्यादा इतना रखूँगा नहीं, but level 3 कोई कुछ ही इंस्टेंस में, but better keep it in L1 and L2. So that's what's going to be, and here is the watt per kilometer reading, which I'll be updating you in the later part of the video while we are actually driving it. Okay, so first stop basically stop नहीं है, but I just made sure कि यहाँ पे हवा चेक करवा दूँ. थोड़ी कम थी पहले, वहाँ पे वार्निंग आ रही थी ना, so I thought कि पहले करवा दी. And this is the main thing what we practice usually before going to the any trip. Now I have already left the city traffic behind, and जैसे बता रहा था कि we are heading for a 150 kilometers one way trip है, and to see कि कितना range the Nexon EV can offer, because अभी जो Nexon 45 किलोवाट की भी आई है उसकी भी हम range test करेंगे really soon. So let me just get the location first. Let me show you. Okay, so as you can see 141 किलोमीटर जाना है, ये यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, एंड इसमें होने वाला है स्ट्रेट रोड्स भी हो गया, अच्छे खासे घाट्स भी होगा, सो कॉम्बिनेशन एवरीथिंग. तो वी गोना सी कैन वी मेक अ राउंड ट्रिप विद दिस रेंज. इफ नॉट देन वी हैव टू चार्ज ओवर देयर. तो कैसा होता है विल फिगर आउट. जीरो तक लाने का नहीं ट्राई करूँगा, इफ रिक्वायर मैं उधर कुछ 25-30% चार्ज करवा दूंगा.
Okay, so battery charge, tire pressure check, and now thing is we are headed straight to do 150 kilometers and range test of course. तो let's talk about the Nexon EV first. तो जो मैं चला रहा हूँ उसमें आपको मिलती है 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक और ऑल्सो नेक्सॉन में 3 बैटरी पैक ऑप्शन है. One is a medium range which gets the 35 kilowatt hour की and now recently they have launched the Nexon with the 45 kilowatt hour बैटरी पैक. तो कैसा है तो बेसिकली ये जो गाड़ी है उसमें आपको परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो 143 bhp का हॉर्स पावर है एंड 215 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है. परफॉर्मेंस एक्चुअली अच्छे नॉट ओनली ऑन पेपर्स बट इसमें जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क है सो परफॉर्मेंस वाइज क्वाइट अ नाइस वन. Okay, so as you can see, statistics update 75% मैंने बैटरी बचाई है, लाइक 25% ऑब्वियसली मैंने कंज्यूम की है. 235 की रेंज है, 73 किलोमीटर चलाई है. वेल दैट इज़ बिकॉज एक्चुअली ऑब्वियसली रुका हो, अभी घाट सेक्शन चालू है ना, तो यहाँ पे मैंने रिसेंटली देखा है कि लास्ट 10-15 किलोमीटर्स में कंजम्पशन रेट बढ़ गया एंड पहले 132 133 के पास था, अभी 138 के पास गया. 140 को एक्सीड करना इज़ लाइक थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो रही है बैटरी, एज यू कैन से फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो this is just what the statistics is basically. Now the thing is मैं अभी घाट सेक्शन को थोड़ा अप्रोच किया है थोड़ा. Now talking about the interior parts, well first I'll get going and talk to you while driving. थोड़ा time waste भी नहीं होगा because AC चालू है, जगह पे खड़े रह के consume करना doesn't make sense. So as you can see the interiors, I actually like the interior of the Nexon EV because as you can see white colors के जो यहाँ पे materials use किए गए ना, that really looks nice and make the cabin look much airier and of course No, I'm not. No, I'm not. I'm not afraid. No, I'm not. No, I'm not. I'm not afraid. No, I'm not. No, I'm not. okay, so we were in the middle of the shoot, stopped in somewhere ghat pe because these guys and of course me wanted to take some shots on the ghat. यहाँ पे हम लोग गोल गोल घुमा रहे थे and but luckily यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, बहुत कम व्हीकल जा रही है, हार्डली मैंने 2-3 व्हीकल पास होते हुए देखा है. काफ़ी एक्यूट घाट है, स्टिल डजंट मैटर, बहुत फन है. ईवी मैं बता रहा हूँ, ड्राइविंग द ईवी ऑन द घाट इज जस्ट नेक्स्ट लेवल ऑफ फन. शूट करने के लिए ना व्हाट यू डन, वी स्टॉप वन गाय ऑन द बाइक एंड आस्क हिम टू जीप को बिठाने के लिए एंड दिस हाउ ही इज शूटिंग एंड दिस हाउ द शॉट एक्चुअली ही कैप्चर्ड. So finally we have consumed the half the battery which is 50% and 50% is remaining and the range is 155 किलोमीटर दिखा रही है. Well you must be wondering कि अभी कितनी किलोमीटर ट्रेवल की है. Well it's quite a surprise because हमें भी थोड़ा सरप्राइज लगा. तो let me just show you. Okay, तो this is not suffice. It's just 131 kilometer. Yes. Now it will be quite surprising for you, but even if you double it, तो जाता है 260 kilometers, right? And जब initially we have started our journey, तो सुबह कितना दिखा रहा था? Around 350, 90 something ऐसा दिखा रहा था. Well, that was unrealistic figure, but यहाँ पे जो condition थी, what we were driving the whole day was actually in the ghats. Major part went to the घाट and अगर आपने नोटिस किया तो 152 watt per kilometer की माइलेज दे रहे हैं and that is quite a lot it's consuming. एंड इट इज़ ऑब्वियस बिकॉज यहाँ पे इंक्लिनेशन इतना था, इतना स्लोप था एंड 3 ऑन बोर्ड थे, तो दैट वाज ऑब्वियस एंड कुछ पार्ट्स में एसी भी ऑन था. सो दैट्स द रीजन ये इतना कंजम्पशन रहा है. बट आई एम होपिंग एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जब रिटर्न में होगा ना इट विल बी कंज्यूमिंग लेस बिकॉज डाउन हिल सेक्शन होगा ज़्यादा, तो व्हीकल ऑटोमेटिकली पावर ज़्यादा रिकर्पोरेट करेगी, चार्ज डेफिनेटली कम होगा, मतलब कम कंज्यूम होगा. सो दैट्स व्हाट आई एम.
ओके सो हमने कर दी है बैटरी ऑलमोस्ट 67% कंज्यूम्ड एंड गोइंग बाय द माइलेज आई कैन सी यहाँ पे है ना 174 किलोमीटर हमने चलाई है हमें और माइलेज रिटर्न की है 154 वॉट आवर पर किलोमीटर. सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हुई है. 174 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो रिमेनिंग रेंज है 83, तो लगभग से जाएगी 250-260 किलोमीटर्स. तो ऐसा कुछ माइलेज है. बट गिवन दैट यहाँ पे हमारे बहुत सारे हिल क्लाइंब था, घाट सेक्शन थे, तो बहुत सारे हमने वहाँ पे बैटरी मतलब कंज्यूम की है. सो दैट वाज द थिंग. वेल अगर आपको रियलिस्टिक वे में बताऊँ ना, तो इफ़ यू आर actually driving on majorly on the straight road and not stressing on the motor, so you can easily get around 270-280 kilometers. But it will eventually come down once you actually put a load inside, then your driving style of course, and again not a elevation, because यहाँ पे elevation बहुत था. We had to climb ghats and mountains वगैरह, तो that's the reason ये mileage रिटर्न हुई है. So I think you will be getting some rough idea कितनी दे सकती है. So overall to end this up, with our driving condition, we had written around 250-260 kilometers. But if you go with your driving style and you're gentle with the accelerator, na, so you're easily able to get the mileage of around 280 kilometers. Not more than, if it 300 plus is only possible if you are very serious with your driving style, limited usage of AC, and of course you are good with the regen as well. So next time to put the vehicle on charge. Okay, so now this is a charge zone का charging station है. Well, pulling this big gun, but उसके पहले but doesn't matter if लगा के Okay, so charging has been completed. Basically 30% हमने चार्ज की है बैटरी एंड अराउंड 26 मिनट लगे थे इसको. तो 63% के हिसाब से वैसे इफ़ यू आर हेडिंग बैक आते टाइम लगी थी हमें 67% ऑफ बैटरी कंज्यूम. तो सिंस इट वाज अ अपहिल सेक्शन, अभी बेसिकली होने वाला है डाउन हिल, तो आई डोंट थिंक कि इतना कम पड़ेगा. आई थिंक इट वुड बी इनफ. हेड गोइंग एंड इट वाज अ वंडरफुल जर्नी आई वुड से. वेल अगर यहाँ ऐसा रोड ट्रिप कर पा रहे हो तो इट्स ईजी फॉर यू टू डू इफ़ यू हैव गॉट योर रूट्स एंड चार्जिंग स्टेशन प्लान्ड एज पर योर डेस्टिनेशन एंड ऑल. टाइम हुआ अभी 2:30 दोपहर के एंड रेंज इज़ 177 किलोमीटर. सो नाउ अभी केस ये है ना कि 160 किलोमीटर्स ऑफ रेंज दिखा रही है, हमें जाना है 143 किलोमीटर्स. तो बफर के लिए भी हमारे पास बचा है 17 किलोमीटर्स ओनली. सो मैंने पहले आपको बता दिया कि क्या हम लोग को रेंज एक्सट्रैक्ट कर, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. और अभी हम जा रहे हैं ऑन आवर रिटर्न जर्नी बैक टू होम. और जस्ट मैंने कुछ ही मीटर्स पहले, कुछ ही 200-300 मीटर्स पहले मैंने डाउन हिल सेक्शन अप्रोच किया है. और हम देखेंगे यहाँ पे कितना डिफरेंस पड़ने वाला है, बिकॉज यहाँ पे मैं मोस्टली एक्सीलरेटर का यूज़ नहीं करूँगा. मोस्टली जो गाड़ी खुद के अपने मोमेंटम से नीचे जाएगी. और अब उसको बता दूँ, मैंने यहाँ पे शू, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ना, तो 49% ऑफ बैटरी है एंड 157 की रेंज है. और यहाँ पे आप देखो 213 किलोमीटर चला है. और मैं आपको डाउन हिल सेक्शन के बाद इसको बताता हूँ कि मुझे क्या डिफरेंस लगा है और कितना ख़त्म होनी चाहिए. ओके, सो देखते हैं कितना मिलती है. एक टिप है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ. अगर आपको घाट के सेक्शन में अगर माइलेज अच्छी चाहिए ना, तो आप जो रीजन है ना उसको आप ऑफ कर दो. तो उससे क्या होगा ना, आपको एक्सीलरेटर मारना पड़ेगा और रीजन वैसे भी लेवल 0 पे रहेगा, तो ये अपने मोमेंटम से आराम से जाती रहेगी. बट जैसे ही आपने लेवल 1 या लेवल 2 पे डाला, तो एवरी टाइम वो खुद का खुद ब्रेक लगा के ना, स्पीड तो स्लो होगा ही, पर उसके साथ साथ आगे जाने पाएगी और डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी. तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि व्हेनेवर यू आर ऑन डाउन हिल, प्रीफर यूजिंग द मैनुअल ब्रेक्स लाइक विद द फुट and avoid using the regeneration, and better to keep the off to level 0. तो उससे क्या होगा ना कि रेंज आप ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाओगे and you'll just make a use of the vehicle's momentum and weight, which will help you to cover more distances. Eventually will increase the mileage of the car as well. So this is one of the tip मैं जो आपको यहाँ पे शेयर किया है.
So with the 13% of charge remaining, I am back to my base town, basically not town, घर पे मतलब locality में आ गया. थोड़ा आगे जाना है and distance I covered in the whole day is 331 kilometer, which wouldn't be possible अगर मैं charge नहीं करता. And thankfully मैंने charge किया 30% and with of that I already consumed 17% of charge. So basically charge करना भी बहुत important था. और जैसे मैं आपको बता रहा था figures की with the full charge you can do around 270-280 kilometers and that was all. And right now I came to my home. Basically मैं farm पे हूँ जहाँ पे I got my home charging socket, portable charger जो आता है 3.3 kilowatt का, जिससे मैं चार्ज करूँगा. एंड जैसे 13% रिमेनिंग है, आई एम अज्यूमिंग कि अराउंड 12 आवर्स में प्रॉब्ली ये फुल चार्ज हो जाएगी. सो दैट्स द थिंग. एंडिंग दिस थिंग रेंज एंड द होल डे, स्पेंडिंग द होल डे विद एन ईवी. मुझे एक पॉइंट यहाँ पे रखना है. रोड ट्रिप इन एन ईवी इज अ वेरी डूएबल थिंग given that you plan your trip properly, plan your charging halt, your food stop. Mostly I would prefer कि आप food stop जहाँ पे खाने के लिए ब्रेक लेते हो वहाँ पे चार्जिंग देख लो. You will be able to charge enough in an hour और वहाँ आराम से आप नेक्स्ट स्टॉप कर सको. 1 hour में यूजुअल 30-60 किलोवाट का जिस पावर होता है, मतलब जिस कैपेसिटी होती है, वही सबसे गाड़ी आराम से चार्ज हो सकती है. सो दैट्स द थिंग. Yeah, that was the video. I hope you liked it, and if you enjoyed the video, please like it, the channel. We'll see you in the next video really soon.